میں اسپیشلی کانا گیا، میں نے وہاں جا کے جائزہ لیا کہ ہوا کیا ہے، تو پتہ یہی چلا کہ جو اصل مجرم ہے وہ غربت ہے، وہ ان لوگوں کی غربت ہے، ان کے علاقے کی غربت ہے، ان کے ارد گرد غربت اپنا وحشیانہ ناچ روز ناچتی ہے اور وہ اس کے اندر رہنے میں مجبور ہیں، وہ روز یہ ناچ دیکھتے ہیں۔ ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی بس خدا سے دعا کریں آپ، اور ہم کیا کر سکتے ہیں، آخرکار جو کرنا ہے خدا نے کرنا ہے، اور یہ جو امیر غریب میں خدا بناتے ہیں، اور یہ لوگ ماننا شروع کر دیتے ہیں اس بات کو۔ اس طرح سے افیون سنگھا دی جاتی ہے اخلاقیات کی۔ آپ جو لوگ ہیں یہ اس کے قصوروار ہیں جو کانا میں ہوا ہے۔ کانا جیسے ہزاروں لاکھوں جو محلے ہیں پاکستان کے اندر، ان کے اندر روز یہی ہو رہا ہے۔ آپ انتظار کریں گے اگلی دفعہ کہاں پہ ہوتا ہے، چھت کہاں گرتی ہے، کہاں پانی نہیں ملتا، کہاں کھانا نہ ملنے کی وجہ سے بیماریاں ہوتی ہیں، بیماریوں کی وجہ سے نہ علاج نہ ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ ہسپتالوں میں دم توڑ دیتے ہیں۔ ایسے حادثات روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پاکستان میں ہر طرف خوشحالی ہو، ہر طرف بہترین تعمیرات ہوں، سب کے پاس بہترین گھر ہوں۔ گھر ہماری طرف سے، ریاست کی طرف سے آپ کو ملے گا۔ تمام بچوں کے اسکول ایچ ایس این کالج جیسے ہوں گے، یا ایچ ایس این کالج جو ہے ادروائز پھر وہ عام لوگوں کے بچوں کے اسکول میں جیسا ہوگا۔ ہم واحد پارٹی ہیں جو یہ کہتی ہے کہ ہر صوبے میں ہسپتال ہوں گے جو اسی سٹینڈرڈ کے ہوں گے جس سٹینڈرڈ کے یہ بڑے بڑے ہسپتال آپ دیکھتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ 4 لاکھ سے کم تو تنخواہ بھی نہیں ہونی چاہیے کسی بھی انسان کی۔ تو یہ 3 چیزیں اگر آپ سوچیں گے یہ ہو جائیں گی تو اس کے بعد رہ کیا جائے گا۔ اس لیے آپ تمام لوگ برابری پارٹی کو ہی اپنا نجات دہندہ سمجھیں۔ اس کے علاوہ آپ کے لیے کوئی اس حد تک کچھ نہیں کرے گا۔ یا تو آپ مان لیں کہ اچھی زندگی آپ کو چاہیے نہیں، اگر چاہیے تو پھر اس کے لیے آپ کو سوشلزم کا نعرہ بلند کرنا پڑے گا۔ کانا میں جو واقعہ ہوا ہے، یہ جو بچوں کی ہلاکت ہوئی ہے اور بہت سارے جو لوگ ہیں اس سے افیکٹڈ ہیں، بہت ساری فیملیز افیکٹڈ ہیں، تو میں اسپیشلی کانا گیا، میں نے وہاں جا کے جائزہ لیا کہ ہوا کیا ہے، افسوس بھی کیا، تعزیت بھی کی ان کے خاندانوں کے ساتھ، بچوں کے خاندانوں کے ساتھ۔ تو پتہ یہی چلا کہ جو اصل مجرم ہے وہ غربت ہے، وہ ان لوگوں کی غربت ہے، ان کے علاقے کی غربت ہے، ان کے ارد گرد غربت اپنا وحشیانہ ناچ روز ناچتی ہے اور وہ اس کے اندر رہنے میں مجبور ہیں، وہ روز یہ ناچ دیکھتے ہیں اور وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اب ان کے ارد گرد کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں، کیونکہ جب میں وہاں پہ گیا مجھے پتا چلا کہ یہ جو چھوٹا سا کمرہ تھا جس کو وہ اسکول کہتے ہیں، وہ چھوٹا سا کمرہ تھا، اس میں 30 سے 40 بچے بیٹھتے تھے چھوٹے سے کمرے میں، اور وہ جو عورت تھیں وہ بھی میرا خیال ہے 400-500 روپیہ لیتی تھی ایک بچے سے مہینے کا، بہت کم ہے جو کہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ اور وہ اس لیے لیتی تھیں وہ پیسے کیونکہ انہوں نے بھی اپنا گھر چلانا تھا، ایک چھوٹے سے علاقے میں وہ رہتی تھی، لیکن وہ جو بچے تھے وہ اتنے غریب تھے کہ ان کے جو بھی والدین ہیں یا جو بھی سرپرست ہیں وہ ان کو عام اسکولوں میں ڈال ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ اسکول کی فیس کافی زیادہ ہوتی ہے، اور اسکول کی فیس کے علاوہ اور بڑے لوازمات ہوتے ہیں، ان کے یونیفارم ہوتا ہے، ان کے سلیبس کے مطابق کتابیں ہوتی ہیں، بڑا کچھ ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے اسکول آپ کو لاہور میں نہیں اور کراچی میں نہیں اور اسلام آباد میں نہیں صرف، بلکہ پورے پاکستان میں نظر آتے ہیں۔ اور اسپیشلی ابھی تو آپ نے لاہور میں یہ سوچا ہے نا کہ چھوٹی سے کمرے میں 40 بچے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، تو آپ سوچیں گاؤں میں کیا حال ہوگا۔ مجھے پتہ ہے، پرسنلی پتہ ہے کہ گاؤں دیہاتوں میں جو ٹیچرز ہیں، جو باقاعدہ ٹیچنگ جن کا پروفیشن بن جاتا ہے، وہ 2-3 ہزار روپے میں بھی پورے مہینے تنخواہ پہ کام کرتی ہیں، 3-4 ہزار زیادہ ہو جاتا ہے، بہت کہیں ہو گیا تو 5 ہزار ہو گیا، لیکن مجھے پتہ ہے کہ 2-3 ہزار میں عورتیں ٹیچ کرتی ہیں بچوں کو، ان کو اتنے ہی پیسے ملتے ہیں مہینے کے۔ تو یہ آپ کا ملک ہے اصل میں، یہ اس سے زیادہ بے حسی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ نے اپنے ملک میں یہ سب کچھ ہونے دیا ہے۔ اور اسپیشلی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو سب سے بڑے مجرم ہیں، غربت کو جو اس ملک کے اندر مستحکم کرنے والے بجائے کہ خوشحالی کو کرتے، انہوں نے غربت کو باقاعدہ ایک بنیاد بنایا پاکستان کے چلنے کے لیے۔ تو ایک تو وہ اس کے ذمہ دار ہیں، بہت بڑے مجرم ہیں سارے، وہ سارے امیر لوگ، وہ سارے کھرب پتی ارب پتی لوگ، ایون وہ لوگ بھی جن کے بچے بڑے اچھے اسکولوں میں جاتے ہیں، ان کو کوئی خیال نہیں ہے کہ عام لوگوں کا کیا بنے گا۔ ایک تو وہ مجرم ہے، دوسرے نمبر پہ وہ مڈل کلاس ہے جو خود بیچاری اپنے پیٹ کاٹتی ہے، سارا وقت وہ خرچے کم کرتی ہے، اپنی چیزیں بیچ دیتی ہے ایسے موقع پہ آنے پہ، جب کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے بھی اپنے بچے کو تھوڑی بہتر پڑھائی کرانی ہے۔ ابھی ایک صاحب میرے پاس آئے ہوئے تھے تو وہ کہہ رہے تھے میں نے 20 لاکھ روپے اپنے بچے پہ لگایا ہے، تو پتہ نہیں اب کیا بنے گا، لیکن میں نے 12 لگا دیا، اور مڈل کلاس کے آدمی تھے، پروفیسر تھے۔ تو یہ حال ہے اس ملک کا اس وقت۔ تو مڈل کلاس بھی دوسرے نمبر پہ مجرم ہے، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے۔ میں اس مڈل کلاس کی بات کر رہا ہوں جو کہ اچھی خاصی کھاتی پیتی مڈل کلاس ہے، میں غریب مڈل کلاس کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ مڈل کلاس کے اندر بھی
काफ़ी सारी पढ़ते हैं, लेकिन अगर दो भी हम करें तो एक खुशहाल मिडिल क्लास है और एक जो बेचारी बिल्कुल गरीब और महरूम मिडिल क्लास है वो, लेकिन मिडिल क्लास ही, गरीब तो मैं आपको बाद में बताऊँगा ना। तो ये वाले जो मिडिल क्लास है जो कि बड़ी मुतमव्वल और खुशहाल मिडिल क्लास है, दूसरे नंबर पे ये मुजरिम है, क्योंकि इनको भी कोई ख्याल नहीं आता, ये अपना भी ख्याल नहीं आता कि किस तरीके से अपना पेट काट के बच्चों को पढ़ाते हैं। रियासत कुछ नहीं करती इनके लिए। वो जो अमीरों की रियासत है, जो सबसे बड़े मुजरिम है, उनकी रियासत के अंदर इनके लिए कुछ नहीं होता, लेकिन ये लोग जो हैं वो, इनको ये कहा जाता है कि जी बस खुदा से दुआ करें आप, और हम क्या कर सकते हैं, आखिरकार जो करना है खुदा ने करना है। और ये जो अमीर गरीब में खुदा बनाते हैं, और ये लोग मानना शुरू कर देते हैं इस बात को, और अपना पेट काटते हैं, बजाय कि किसी तरह तरीके से एक ऐसे मुनज़्ज़म हो के सियासी तौर पे ये अपने हक़ के लिए लड़ें। ये आराम से वैसे ही रहते हैं, और इनको एक तरह से अफ्यून सुंघा दी जाती है अखलाकियात की, और फिर मज़हब के जो गलत तसव्वुरात लोगों के अंदर पैदा किए गए। हालांकि मज़हब तो बड़ी खूबसूरत चीज़ है, लेकिन उसको गलत तरीके से पेश किया गया है, उसकी भी अफ्यून होती है, वो भी इनको सुंघा दी जाती है, और ये ऐसे रहते हैं। ये दूसरे नंबर पर मुजरिम है। और तीसरे नंबर पर मुजरिम वो हैं जो गरीब लोग हैं, जो बिल्कुल इस मुल्क के अंदर जानवरों और कीड़े मकोड़ों की तरह रहते हैं। उनको भी पता है, बड़ी अच्छी तरह पता है उनको मैं क्या कह रहा हूँ। मैं रोज़ लोगों से मिलता हूँ, उनके जिस तरह के मसाइल मैं देखता हूँ, जिस तरह के मसाइल मैं सुनता हूँ, तो उसके बाद थोड़ी देर 5-10 मिनट ना दिमाग माउफ हो जाता है, फ्रीज़ हो जाता है। समझ नहीं आती कि इन लोगों का क्या किया जाए, इतने ज़्यादा हैं ये। तो एक ही बात समझ आती है कि सियासत के अलावा कोई चारा नहीं है। इनके लिए एक पार्टी बनानी चाहिए। ये पूरी दुनिया में हुआ है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो रशिया है, चाहे वो चाइना है, चाहे वो दुनिया का कोई भी और मुल्क है। ये सारे मुल्क जो हैं सियासी पार्टियों ने ही आखिरकार तामीर किए हैं। लोगों ने सियासी पार्टियों में शमूलियत इख्तियार की है, और फिर उसके बाद उन्होंने सियासी तहरीकें शुरू की हैं, और उसके बाद ये चीज़ें बदली हैं लोगों के लिए। तो आपके पास भी कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि आप सियासी पार्टी बनाएं। सियासी पार्टी वाहिद वो चीज़ होती है जो किसी भी मुल्क के अंदर एक बड़ी तब्दीली लेके आ सकती है, लेकिन वो सियासी पार्टी ऐसी हो जो सिर्फ आप लोगों की हो, और वो सिर्फ मिडिल क्लास मेहनत कशों और गरीबों की हो। इसमें कोई और क्लास के लोग ना आ सकें, और ये तबकाती बुनियादों पे बने, और ये हमारे अलावा कोई नहीं है। पूरे पाकिस्तान में बराबरी पार्टी के अलावा अवामी सतह पे इतनी बड़ी पार्टी और कोई है नहीं। तो आप तीनों किस्म के जो लोग हैं ये इसके कसूरवार हैं। जो काना में हुआ है, काना जैसे हज़ारों लाखों जो महल्ले हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके अंदर रोज़ यही हो रहा है। आप इंतज़ार करेंगे अब के अगली दफ़ा कहाँ पे होता है, छत कहाँ गिरती है, कहाँ पानी नहीं मिलता, कहाँ खाना ना मिलने की वजह से बीमारियाँ होती हैं, बीमारियों की वजह से ना इलाज ना होने की वजह से लोग जो हैं वो अस्पतालों में दम तोड़ देते हैं, या अपाहज हो जाते हैं, या उनके लिए ज़िंदगी जो है पूरी एक मुसीबत और अजियत का सामान बन के रह जाती है। तो ये सब आप खुद कसूरवार हैं इसके, आप सारे। तो बराबरी पार्टी काना के सानिया पे बहुत ज़्यादा सोगवार है। हम बड़े परेशान भी हैं, हम बड़े हैरान भी हैं कि इस मुल्क में क्या हो रहा है, लेकिन हमारे पास एक तरीका है, वाहिद हम लोग हैं कि जो इस मुल्क को बदल सकते हैं, क्योंकि हम आम लोगों की पार्टी हैं पहली नंबर पे, और हम उन लोगों के ख़िलाफ़ खड़े हैं जो पाकिस्तान इस वक्त चला रहे हैं, और वो सारी पार्टियाँ उसके अंदर आती हैं। हमारी बड़ी वाहिद पार्टी है जो उन सब पार्टियों के सामने खड़ी है। और हम सोशलिज्म की बात भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में हम नहीं समझते कि सोशलिज्म के बग़ैर इस मुल्क के जो इतने बड़े तादाद में लोग गरीब हैं, मेहनत कश, मज़लूम, महरूम, हर किस्म के बेकस लोग, इनका कुछ बन सकता है। इनका कुछ नहीं बन सकता सोशलिज्म के बग़ैर। तो हम आप सब लोगों को दावत देते हैं कि ऐसे हादसात रोकने का एक ही तरीका है कि पाकिस्तान में हर तरफ खुशहाली हो, हर तरफ बेहतरीन तामीरात हों, सबके पास बेहतरीन घर हों, हुकूमत आपको घर देने की मिजाज हो। अगर आप खुद बना सकते हैं तो बनाएं, हुकूमत आपको असिस्ट करे, अदरवाइज़ हुकूमत आपको घर दे। आपको फ्री हाउसिंग मिलनी चाहिए, ये इस मुल्क में कोई नहीं कहेगा सिवाय बराबरी पार्टी के। हम कहते हैं कि मुफ्त तालीम, मुफ्त इलाज, मुफ्त घर, ये मतलब घर हमारी तरफ से, रियासत की तरफ से आपको मिलेगा। और जब इस तरह के घर बनेंगे तो स्कूल और कॉलेज का क्या कहना, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ तो तमाम लोगों के लिए जैसी होंगी हमारे जो इक़्तिदार में आने के बाद। और हम इक़्तिदार में जब आएंगे तो इतने बड़ी तादाद में लोगों को साथ लेके आएंगे, करोड़ों लोग हमारे लिए सड़कों पे एक हमारे नारे पे निकलने के लिए तैयार होंगे। तो जब हम आएंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकेगा, इतना बड़ा हम चेंज लेके आएंगे, हम इस मुल्क को यकसा बदल देंगे, हमारे अलावा ये कोई नहीं कर सकता। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ मैंने आपसे कहा बेहतरीन हर इंसान के लिए होंगी,
तमाम बच्चों के स्कूल एचएसएन कॉलेज जैसे होंगे, या एचएसएन कॉलेज जो है अदरवाइज़ फिर वो आम लोगों के बच्चों के स्कूल में जैसा होगा। हम बराबरी की बात करते हैं, तो हमें तो नीचे से ऊपर जाना है ना, तो हम तो यही समझते हैं कि एचएसएन कॉलेज को नीचे लाने के बजाय तमाम लोगों के बच्चों को एचएसएन कॉलेज जैसे कॉलेजों में पढ़ाया जाए, मुफ्त पढ़ाया जाए। ये हमारे अलावा कोई नहीं कर सकता, बराबरी पार्टी सिर्फ कर सकती है। इसी तरह जो तालीम के अलावा इलाज की सूरत हाल है, वो जिस तरह है आपको पता है गरीबों का जो हाल होता है, तो हम वाहिद पार्टी हैं जो ये कहती है कि मुफ्त इलाज और बेहतरीन इलाज तमाम पाकिस्तान में हर जगह, हर महल्ले, हर गांव, हर कस्बे, हर शहर, छोटे शहर, हर सूबे में पाकिस्तान के अंदर हस्पताल होंगे जो उसी स्टैंडर्ड के होंगे जिस स्टैंडर्ड के ये बड़े बड़े अस्पताल आप देखते हैं, अमीरों के अस्पताल जो बड़े शहरों में आपको ख़ास तौर पे मिलते हैं, जहाँ पे लोग अपने छोटे छोटे गाँव और देहातों से भी आते हैं और बेचारे अपने मरीज़ों को लेके आते हैं और अपनी जमा पूंजी भी सारी ज़िंदगी की वहाँ लुटा देते हैं और वहाँ आके उनको इलाज उस तरह फिर भी नहीं मिलता। तो हम उन जैसे बेहतरीन अस्पताल तमाम पाकिस्तान में इसका जाल बिछाएंगे, ये सिर्फ हम कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो जब ये दो चीज़ें हो जाएंगी तो आप सोचें, और हम ये कहते हैं कि 4 लाख से कम तो तनख्वाह भी नहीं होनी चाहिए किसी भी इंसान की, तो ये 3 चीज़ें अगर आप सोचेंगे हो जाएंगी तो उसके बाद रह क्या जाएगा। तो इसलिए आप तमाम लोग बराबरी पार्टी को ही अपना निजात देंदा समझें, इसके अलावा आपके लिए कोई इस हद तक कुछ नहीं करेगा। ये सब लोग आपके साथ धोखा करेंगे, आपके साथ ड्रामेबाजी करेंगे, और वो जो तमाम बच्चे जो फौत हो गए हैं 14, आप ज़हन में रखेंगे वो 14 बच्चे नहीं हैं, वो 14 करोड़ बच्चे हैं। वो 14 करोड़ बच्चे पाकिस्तान के अंदर जो हैं वो जिन मुख्तलिफ़ एजेस के, हम उनको भी बच्चा समझते हैं, जो थोड़े से बड़े भी हों लेकिन वो आखिरकार अपने वालिदैन के बच्चे होते हैं, अपने पाँव पे खड़े नहीं होते। तो ये जो तमाम लोग हैं सारे के सारे, इनका भी कोई पुरसाने हाल नहीं है। वो 14 बच्चों की तरह ही या तो आहिस्ता आहिस्ता घुल के फौत हो जाएंगे, उनको अच्छी ज़िंदगी कभी नहीं मिलेगी, या तो आप मान लें कि अच्छी ज़िंदगी आपको चाहिए नहीं। अगर चाहिए, जितनी भी ज़िंदगी आपने इस दुनिया में गुजारनी है, पाकिस्तान में गुजारनी है, तो फिर उसके लिए आपको सोशलिज़म का नारा बुलंद करना पड़ेगा। सोशलिज़म के बग़ैर उसके अलावा आपको तमाम वो चीज़ें जो इस मुल्क में बनती हैं, उगती हैं और मिलती हैं, वो मैसर नहीं हो सकेंगी। सोशलिज़म और बराबरी पार्टी ही वाहिद आपके पास इस वक्त ऑप्शन है। इसको ज्वाइन करें और इस मुल्क को अपने लिए और अपनी नस्लों के लिए यकसर तौर पे एकदम तब्दील कर दें।